کہ جو اہل سنت ہیں وہ ہیں سیدھے راستے پر. واہ 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 ماشاءاللہ. لیکن آج کئی بدعتی ان میں گم ہو گئے اور ان میں مل گئے، کھل مل گئے. آج کیسے پتا چلے کہ سچا سنی کون ہے؟ ٹناٹن سنی یا پپلا سنی، دیوبندی سنی یا بریلوی سنی یا اہل حدیث سنی؟ انہوں نے فرمایا نشانی ہے، ہم بتاتے ہیں. آئے نہیں میدان میں. ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. انہوں نے فرمایا نشانی ہے، ہم بتاتے ہیں. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، داد والے کے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تو ہے کون تو؟ حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب. اچھا حضرت آواز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا آواز بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. سلامتی نو سن دیو تو سا ڈب کے مر جاؤ. زبردست کڑک آواز ہے، بڑا آواز ہے. حضرت تو اس کے لیے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو جو جواب دیتا ہوں، آپ گلے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں غیرت. اب تو کیا دیکھ، تیری اوقات میں دکھاتا ہوں تجھے. شیر کر کے سچا نہ بن. تسی بکری علی مثال دیتی، تسی بابے علی غلط مثال دیتی کہ تیری ماں کو میں اپنا بابا بھیجنا. کیوں شرم نہیں تینوں ہے؟ تینوں شرم نہیں تو کیوں تو بے غیرتی والی زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی میں نے. واہ واہ واہ. ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا اگر آپ غیرت استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا گلا فٹ رہے گا. اب دیکھ تو کیا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا، کنجر دماغ میں کنجر گل ہی آنی ہے. تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی؟ بے غیرتی والی زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی میں نے. اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی. تربیت کیے ہوئے بندے میں اور پالے ہوئے بندے میں ایک فرق ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جب بولنا ہے نا تو میرے پیچھے میرے ماں باپ، میرے استاد، میرے پیر، میرے دوست، سب کو یعنی ان کا چہرہ سامنے آنے والا ہے. تو پھر میں کیوں ایسی لینگویج یوز کروں بھائی؟ تو سا ڈب کے مر جاؤ. ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ جب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو جو جواب دیتا ہوں، آپ گلے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں غیرت. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ایک سٹ بھی نہیں تو آلہ حضرت ملنگا دی سہ سکتا. اس لیے اپنی اوقات میں رہو اور جو عقیدہ ہے وہی قوم کے سامنے بیان کرو. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. کہ جو اہل سنت ہیں وہ ہیں سیدھے راستے پر. واہ 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 ماشاءاللہ. لیکن آج کئی بدعتی ان میں گم ہو گئے اور ان میں مل گئے، کھل مل گئے. آج کیسے پتا چلے کہ سچا سنی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا نشانی ہے، ہم بتاتے ہیں. آئے نہیں میدان میں. ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. یہ ہے وہ جاہل. لیکن آج کئی بدعتی ان میں گم ہو گئے اور ان میں مل گئے، کھل مل گئے. انہوں نے فرمایا نشانی ہے، ہم بتاتے ہیں. مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. جملے کا وزن محسوس کیجئے. جس طرح مچھردانی کے ساتھ مچھر کا تعلق نہیں ہوتا اور آلو بخارے کے ساتھ آلو کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بگڑے ہوئے جو سنیوں میں داخل ہیں ان کا تعلق بھی سنیت کے ساتھ نہیں ہے. بھائی مارو مجھے، مارو مجھے، مارو نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ دیکھیے بھائی جان تاکہ آپ کو مسئلہ واضح کر سکوں. قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. گاڑی اسٹارٹ کر. فرمایا کہ کسی کی شفاعت قیامت والے دن ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. تو وہ کہتا ہے دیکھو اے لکھے ہے شفاعت کو نہیں ہونی، نبی کہتا ہے شفاعت ہونی ہے، فلانا ڈمکانا. چپ، بالکل چپ. استغفر اللہ. جو شفاعت کا منکر، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اوے ہم تمہارے بابوں کی شفاعت کے منکر ہیں، رسول اللہ کی شفاعت کے منکر نہیں ہیں. یا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से जो शफात का दरवाजा खुलेगा, बुखारी मुस्लिम में आया, उसके बाद फरिश्ते भी शफात करेंगे, पैगंबर भी शफात करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे भी शफात करेंगे। इसके ऊपर मेरी वीडियोस कई साल पहले की रिकॉर्डेड है, एक नहीं कई एक। हम तुम्हारे बाबों की शफात के कायल नहीं है। जिन्होंने किसी को तकलीफ हो तो भाईजान मैं तेरी तकलीफ का इलाज कर नहीं सकता, चूंकि हम मुनाफिकत वाली बातें यूं के यूना के चूंके चुनाचे वाली बातें नहीं करते। मुफ्ती साहब आप जलील होते रहे हैं, हाँ, जलील होते रहते हैं, जलील होते रहेंगे। वो जो इंजीनियर का फितना आया है ना, अहले हदीस हमसे ज्यादा उससे परेशान है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान है, हम उतने परेशान नहीं है, अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान। बाबा जी रिजवी साहब कहा करते थे कि हम गुम घुमा के बातें नहीं करते, जो पड़ा है हम स्टेज पे कह के चले जाते हैं। धर धर कुत्ते हो और धर धर कुत्ते हो और माल का नहीं पै गए हो। बाबा जी रिजवी साहब कहा करते थे, इनू हल्का ना जाड़ो, जड़ा भोंकदा जे नबी उते भोंकदा जे, तुहाडे बाबे हाल विच जाके भोंकदे न रसूलुल्लाह के ऊपर। यही नहीं, अभी और सुनिए। बायजीद बुस्तामी से जब पूछा गया कि बताएं क़यामत वाले दिन सब लोग रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे होंगे या आपके झंडे के नीचे होंगे, ये पूछने वाले बुट केड़े ने जिन्होंने कुरान दीस ही नहीं पता। तो कहते हैं मैं कसमियां कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे। और यहां पे उन्होंने खत्म नहीं किया, वो कहते हैं लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। हजरत साहब अगर आपने ये बात कही है ना, तो आप पाकिस्तान में आए तो सबसे पहले मैं पिटीशन फाइल करूंगा 295। और इधर देखिए भाईजान, ताकि आपको मसला वाज़ेह कर सकूं। वो तेरी मां वाकई तू है ही खोती दा। मोहम्मद अली मिर्जा जानते हो ना उन्होंने, वो एडा खन्नास लानती बेवकूफ अल इल्मो छिछड़ातुन वल खिचोहा। उस्ताद मोहतरम बताएं मिर्जा जहलमी को, ला इलाहा इल्लल्लाह, फजूल बंदे का नाम उठाने पे बैठे हो, ना अक्ल ना शक्ल। अल्लाह के बंदे उलमा बैठे हैं, उलमा हमारे बुजुर्गों की औलाद है, उलमा बैठे हैं। उलमा की महफिल में आप उस बंदे का नाम लेते हैं जो आलिम भी नहीं है, हाफिज भी नहीं है। मिर्जे के दांत ने निकाल दे इल्मी तो इंसान जलील इंसान। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगता है मैंने। ये इल्मी दुनिया में ये जवाब है, आप उसका जवाब देना कि तकलीद किस कुरान की आयत से साबित है। आंखें बंद करके अकाबरीन को फॉलो करना कहाँ लिखा हुआ है? मैं उलमा से कह रहा हूँ, मंजी ठोकनी है तो दलाल ना ठोको, जो हदीस वो पेश करते हैं सनदन कमज़ोर है बताएं। इधर से अली भाई वीडियो बनाते हैं, उधर से वीडियो का जवाब नहीं आता, गालियाँ आती हैं। इधर तो अब्बा कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ही खैर करे। ये उलमा है, ये इल्म है, ये बुखारी मुस्लिम आपको समझाएंगे। या तो दलाइल ख़त्म हो गए हैं, ये सब लाजवाब हो गए हैं, और मिर्ज़ा साहब का ये नारा इस्टेब्लिश हो गया है, द डैमेज हैज़ बीन। क्या है और तू किसे है? अजाब पर कम कर, 1400 साल तो बाद झूठ आ गई है, मैं इनको नहीं मानता, इनको नहीं। तेरी औकात क्या है? 1400 साल उम्मत ने लिख दिया साडिया बाबियां जैसा है कोई नहीं, जेलम दी कुत्ती ते है कोई नहीं ना, कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तुहाडे बाबे ते शेर ही कोई नहीं। आज कैसे पता चले कि सच्चा सुन्नी कौन है? उन्होंने फरमाया निशानी है, हम बताते हैं। खुद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई। ये है वो जाहिल। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स मुझे मुसीबतों में पुकारे तो उसकी मुसीबत दूर हो जाती है, जो कोई तकलीफ में मुझे पुकारे उसकी तकलीफ जाती रहती है। ये बताए तुमने कहां से पढ़ा है, तेरी क्या डिग्री है? हाय 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 सर, उन इंजीनियरिंग हो चुकी है, तय करना, रुक जाओ। और अगर आप सिराते मुस्तकीम का दावा करते हैं और आपकी पूरी नस्ल में कोई वली पैदा नहीं हुआ, बल्कि आप वलियों पर तनकीद करते हैं, तो आपको ये कहने का हक हासिल ही नहीं है कि आप सिराते मुस्तकीम पर हैं, क्योंकि कुरान कहता है जो सिराते मुस्तकीम पर चलेगा उसका लाजमी नतीजा ये है कि अल्लाह ताला उसे मकाम विलायत अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। मैं कहा तेरा अब्बा तो है ही कोई नहीं, कि मेरा अब्बा हुआ है जिदी कबर मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू दस तेरा अब्बा कौन है? तुहाडा कोई नवा अब्बा आंदा अपना ना ठोक के विच टुट जाना। तू दस तेरा अब्बा कौन है? रुको जरा, सबर करो। मेरे प्यो दा नाम अहमद रजाई।
बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहा करते थे, तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहा करते थे, और सूरा बाबा जी रिजवी साहब कहा करते थे, देखिए गालियां देने वाले खुद जहन्नमी चीख उठेंगे कि ये मतलब कौन आ गया है। तेरी कमी रहिंदी सी बांदरा। बाबा जी रिजवी साहब कहा करते थे, गाली देना मुसलमान को ये फिस्क है। इतना बड़ा इंटरनेशनल मुतमइन बेगैरत एक सट भी नहीं तू आला हजरत दे मलंगा दी सह सकदा। अगर ये आपको समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलिए। अद्दीन कुल्लहु अदब, फरमा दीन सारे दा सारा अदब का नाम है। लेकिन एक सेकंड, वो तेरी माँ वाकई तू है ही पोती दा। इंजीनियर मिर्जा, तेरी माँ के कुत्ती के बच्चे कुत्ते हो और धर कुत्ते हो। कि हम गुम घुमा के बातें नहीं करते, जो पढ़ा है हम स्टेज पे कह के चले जाते हैं। अब मैंने कहा कमरे में बैठ के पढ़ेगा तो प्लम्बर बनेगा। तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। उस्तादों के पास बैठ के पढ़ेगा तो सम्मर बनेगा ना। अब ये कौन है बे? वो खपती किस्म का पागल मौलवी है। आज उसकी बात मुझे याद आ रही है, जब ये 3G नहीं था ना तो लोगों की इज्जत महफूज थी। हमारे मुआज़म दीनी जो है ना उनकी इज्जत महफूज थी। लेकिन अब कोई एक बताओ कि जिसकी इज्जत महफूज हो। सोशल मीडिया एक ऐसे ही मार्केट है। मुझे जो कहना है कि मैंने आज तक जवाब नहीं दिया। मेरे माँ बाप को गालियां देते हैं ये, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब दावत हक में बोलेंगे फिर मैं कोई नहीं, मैं सीधा ਤੁਹਾਡੇ हैंडलर्स ਨੂੰ पकड़ना है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ स्टैब्लिशमेंट है यानी सूफिया, सीधा उत्थे हथ पाना है मैं। और इस वार को वारियत कहते हैं। ये है फिरका वारियत। हम फिरका वारियत कहां करते हैं? हम तो आने वाले अटैकों को रोकते हैं और फिर भी लोग चीखते हैं। ऐनका लगी है एडी मोटियां, ये बाबा जानी को भी लगी हुई है। ऐनक लगा के पढ़ रहे होते हैं और लोगों को दिलों के हाल ये जानते हैं। खुद जो है वो आला हजरत जो बरेलवी साहब थे ना, अहमद बरेलवी, उनको भी ऐनक लगी हुई थी। उनकी भी जो आप तस्वीर देखें ना, मेरे गौस पाक का एक दावा भी है। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम ना हो, लोगों जो घरों से खा के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं, ये दीन है जो आप काफरों को पेश करेंगे। जो छोड़ के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं। तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हारी हैसियत उस बोतल की सी होती है जो शीशे की बोतल हो, जो अंदर होते बाहर से नजर आता है। कहानियां बंद करो। मेरे सामने आने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी की निगाहें तुम्हारे बातिन को जाहिर की तरह देखती है और जाहिर को बातिन। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ये सब के लिए मौत साबित होगी, ये याद रख लें। और इमाम अहमद रजा का परचम कल भी बुलंद था। तुम गांडू हो, तुम पांडी। इमाम अहमद रजा का परचम आज भी बुलंद है। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। ये शजरे अहले सुन्नत की वो आबियारी होगी। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसका साया भी बढ़ेगा, इसका फल भी बढ़ेगा। पता चल जाएगा कि इमाम अहमद रजा के जो फिक्री बेटे होते हैं वो कैसे मसलक पर पहरा देते हैं। इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। म्यूजिक नदियों पार सजन गाठा कीते कौन जरूरी जान परवाह दे नाल दिल ला लिया ते परवाह दे बाकियां दी गल असी कोई नहीं पे करदे। वैसे तो ये लोग दीन के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये हजरत उमर होते तो किसी और तरीके से बात करते। इंशाल्लाह उम्मीद है इनको आराम आ जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए